process in Indian politics and what is the Indian election system, we have to start. So before starting this chapter, that is first point 4.1, why elections? So if the election is the main root of political corruption, so why we need elections? Yeah, why election? It means, could any democratic country run without political elections? In any democratic country, government could be come in the power, or political party can make government without elections. So why we need elections? What is the role of election in democracy? So that is simple. Answer is because through elections, the country's people send their representative to form the government and run the countries and solve the country's issues and problems. But it may happen without election also. If you skip up all the election procedures and tell the people, you have to choose or elect their representatives orally. It was happened in Greece and Rome, but not now these days. All over the world, more than 120 countries are democratic countries. But all over the world, all the countries, that countries is big, large, small, or vast countries, very small countries also, they are having election process, election commission. Why? Because in ancient times, there was no development of science, there was no development of different routes of social work or social development. People living simply just like a noble savage, just like noble animals, because their demand were only to fulfill their foods, quench their thirst, and sheltering. There was no different styles of sheltering now these days, just like. So उस जमाने में न एसी था, न टीवी था, न फ्रिज था, न ये था, न वो था. तो they living simple life. Or there were very small, just like in India, just before independence, there were many kingdoms in India also. And now these days, after the merging all the kingdoms just after the independence, this is our India, from Jammu and Kashmir to Kanyakumari. But from Jammu and Kashmir to Kanyakumari, there were more than 600 kingdoms during British rule. So, on those days, that was possible to elect their representative orally, or in the meeting, or in the assembly directly. So, on those days, in ancient times, there were very small kingdoms. So, people elect their representative to run the government or solve the issues and problem of their kingdom orally in the assembly meetings. But now these days, life is so complex. Each and every people know have not sufficient time to solve the social or country issue. They are moving here and they are running behind their own problems, not the social or country's problems. So that's why this election process was started and developed in all over the world, in democracies. It means in ancient times, all the election procedures of the king or panchayat, adhyaksh, or etc., especially in our India, there were two, in ancient time, there were two republics.
Do you know about that? And in both from both republics, there were two legend personality emerged. One was Mahavir Swami, second was गौतम बुद्ध. तो एक पावापुरी था, दूसरा शाक्य रिपब्लिक था. तो वो छोटे छोटे रिपब्लिक थे जहां पीपुल्स इलेक्ट करता था वहां के लीडर को. वहां के छोटी किंगडम थी, उनको चलाने के लिए रूल्स बनते थे. बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर टुडे. तो इसलिए जब डायरेक्ट हम बिना किसी प्रोसेस के किसी असेंबली में बैठ करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, व्हेन वी डायरेक्टली इलेक्ट और orally elect our representative in meeting, in assembly, that procedure is called direct election. वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है क्योंकि पीपुल्स चूज डायरेक्टली देयर लीडर्स. बट नाउ दिस डेज ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन. तो डायरेक्ट वोटिंग होती है बट इलेक्शन हम इनडायरेक्ट करते हैं क्योंकि हम किसी को बताते नहीं. हम हैंड रेज करके असेंबली में इलेक्शन नहीं करते. हम वोट देते हैं, वो भी हमारा वोट क्या होता है, हिडन होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को हम कह नहीं सकते, गुप्त मतदान होता है. सो इलेक्शन जरूरी इसीलिए है बिकॉज नाउ दिस डेज द कंट्रीज पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज एंड ह्यूज and each and every peoples are running behind their own problems, not countries or social problems. So solve the social issues and countries issues. People wanted to choose their representative who will make government or who will solve the countries and social issues and also implement the wishes of the people, desire of the people. हमें क्या चाहिए, देश कैसे चलना चाहिए, हमारा समाज कैसे चले, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो. तो ये सब की अपेक्षाएं पीपुल करके एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और वहां पर जा करके जो है वो उनकी बातों को उठाता है. सो दिस इज ए स्टोरी. आई डोंट वांट टू रीड हियर, यू हैव टू रीड. व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? सेम क्वेश्चन. इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि इतने बड़े देश में कैसे पता चलेगा कि रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया है या नहीं चुना गया है, या सारे लोग इकट्ठा होकर तो बता नहीं पाएंगे कि नहीं नहीं ये हमारे प्रतिनिधि होंगे, हम इनको एमपी एमएलए बना रहे हैं. तो सिंपली वो कॉन्फिडेंशियल वोटिंग कर देते हैं, अपना मत दे देते हैं जिसको भी देते हैं. आफ्टर काउंटिंग अगर मेजॉरिटी वोट पाता है तो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है. बट हियर इज सम पॉइंट. तो इसको मैंने कंसाइज किया है. पहले व्हाट इज कॉल्ड इलेक्शन, क्वेश्चन वुड बी, यू कैन राइट, अदरवाइज आई विल सेंड थ्रू स्कूल मित्रा पोर्टल. तो नोट्स मैंने बनाए हैं, आपको भेजेंगे. सो व्हाट इज कॉल्ड इलेक्शन? दिस इज सिंपल आंसर. टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपुल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव. एक तो ये है कि ये श्योर करने के लिए कि लोग जिनको लाइक नहीं करते हैं, यानी 5 साल वो चुनाव तो जीते लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया, डोंट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, और अगले 5 साल के लिए उनको चाहते नहीं कि यही उनके प्रतिनिधि रहे, वो बदलना चाहते हैं. दिस रिक्वायर्स ए मैकेनिज्म बाय विच पीपुल कैन चूज. तो ये एक रिक्वायरमेंट है मैकेनिज्म की, एक मशीनरी जिसको इलेक्शन बोलते हैं. पीपुल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव at regular intervals and change them if they wish to do so. In India, that interval is 5 years, each 5 years. But different countries has different election intervals. In US, 4 years. In some countries, 2 years. In Switzerland, 1 year. तो कहीं कहीं प्रेसिडेंट का चुनाव होता है 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए. स्विट्जरलैंड में तो ये है कि 7 मल्टीपल गवर्नमेंट होती है. 7 पर्सनल की एक जो ग्रुप है, टीम है, उसको इलेक्ट कर लिया जाता है और अल्फाबेटिकल आर्डर से 1 ईयर के लिए वहां पे लोग प्रेसिडेंट बनते हैं. इसीलिए वहां कोई नेशनल लीडर नहीं दिखता.
कभी आपने सुना है टीवी में कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति, या बहुत हाईलाइट हुआ, बहुत स्मूथ कंट्री है, वहां पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, वहां कभी दंगे नहीं होते, कभी प्रोटेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी लीडर को पता, सबको मालूम है कि हमको 1 साल रहना है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करना है, उसके बाद अगला आ जाएगा। तो जस्ट लाइक दिस, अब ये नहीं है कि अल्फाबेट में उनका 1 साल पूरा हो गया तो दूसरे को रोक सकते हैं, नहीं। सपोज कि आनंद नाम है तो ए अल्फाबेटिकल है तो बस 1 साल, ब्रजेश उसके बाद आ जाएंगे, बी अल्फाबेट आ गया, उसके बाद चंद्र प्रकाश आ जाएंगे, सी वाले, जस्ट लाइक दैट। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। Why do we need elections? Topic is also in the form of questions. It means simply we have to answer. So this is the answer. We need elections because elections are considered essential in our times for any representative democracy. Representative democracy means प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र या प्रातिनिधिक लोकतंत्र। In an election, the voters make many choices. What are the benefits of election? Question would be, इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकता है कि can you tell any benefit of election? या describe benefits of election. So why do we need elections and benefits of election? Answer is same, common. They can choose who will make laws for them. Through election, peoples can choose who will make laws for them. They can choose who will form the government and take major decisions. Next, they can choose the party whose policies will guide the government and lawmaking. That's why all the parties in election campaign making their manifesto. Manifesto means घोषणा पत्र। तो हर पार्टी अपना अपना एक मैनिफेस्टो बनाती है कि हम सत्ता में आएंगे तो जनता के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। शुरू में जो सिंपल स्टोरी है चौधरी देवीलाल की, उन्होंने भी बोला था कि जब हम सत्ता में आएंगे, इफ माई पार्टी विन द इलेक्शन, आई विल डिबार ऑल द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन डेट। जो कर्ज लिया था उन्होंने बैंकों से, किसान और छोटे व्यापारियों ने बोला था कि उनके कर्जे हम माफ कर देंगे, पूरा का पूरा जो भी सरकार का दावा है उनसे वसूली करने का वो हम छोड़ देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी, स्टोरी में दिया है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और उसी मैनिफेस्टो पे कांग्रेस हार गई, 5 सीट पे आ गई, और इनको जो है मोर देन 60 सीट, मैंने बहुत ज्यादा सीटें मिली। खैर, अब नेक्स्ट, व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? ये तो हो गया कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। तो थ्रू इलेक्शन जो भी पीपुल की चॉइस है वो अपना जो है डिमांड करती है, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव और पार्टी को चूज करती है कि जो हमारे डिमांड्स को, हमारे डिजायर को फुलफिल करेगी, हम जो पॉलिसी चाहते हैं उसको लेकर के आएगी। बट इन डेमोक्रेसी व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इलेक्शन तो हो रहा है, इलेक्शन were also held in China, election also held in North Korea. तो वन पार्टी रूल इन चाइना, एक ही पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, बाकी को लड़ने नहीं दिया जाता। दूसरा, इन नॉर्थ कोरिया किम जो, वो 100, 200, 400 अपने लोगों को या फर्जी वोटिंग करवा करके अपने प्रेसिडेंट बन जाता है। तो वो भी कहते हैं कि वी आर डेमोक्रेसी। चाइना कंट्रीज आल्सो ओके हाईलाइटेड एज ए डेमोक्रेसी। वो तो बोलते हैं वी आर द रियल डेमोक्रेसी। चाइनीज गवर्नमेंट का दावा ये होता है कि एक ही चाइना है जो रियल डेमोक्रेसी है, बाकी तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइट्स है अदर कंट्रीज में। खैर, तो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इट मीन्स वी हैव टू आंसर। सो आई होप, I want for this answer, all the students will write this answer. Could you write this answer? Yes, sir.
So what will be the points of this answer? Any students can say? It's given. So every person have right to vote. Yes. There are blue squares. Okay. First is given on page number 58, and second, third, fourth, and fifth are given on page number 59. But here we have to read this because some students have no idea. क्योंकि यस सर एक ही तो लोग बोले हैं तो बाकी लोगों को मिल नहीं रहा होगा, मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है कि वो फाइंड आउट कर लें. So what makes an election democratic? The first point is everyone should be able to choose. ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है फर्स्ट टू फिफ्थ कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन तब होगा कि जब एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. चुनाव के लिए सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति सक्षम होंगे. दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट and every vote should have equal value. Everyone should have one vote. सबको एक ही वोट देने का अधिकार होगा. और दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन है कि each and every vote has equal value. ये नहीं कोई अमीर आदमी चला गया तो उसका वोट जो है 10 के बराबर हो गया. ऐसा कुछ कंट्रीज में होता था पहले, बट अब नहीं है. इंडिया में भी था. So second, there should be something to choose from. उनको चुनने के लिए कुछ होना चाहिए. तो चुनने के लिए क्या होता है? There are many candidates of parties and individual candidates, okay, for their choice. डिफरेंट पार्टीज होती है, पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं कि हमें चुनाव जिताइए, हमें जिताइए. बेचारे बड़े सीधे बंदे लोग होते हैं, एकदम ऐसे हाथ जोड़ के चलते हैं, ठीक है ना, गरीब से गरीब के पैर पे जो है माथा टेक देते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो है उसी गरीब को लात से मार के निकल जाते हैं. तो वोट लेने के लिए जानते हैं कि इस समय जो है हमको इसको चुनना है, ये चुनेगा तभी हम जाएंगे दिल्ली या लखनऊ. तो उस समय वो गांव घूम करके माथा टेकते हैं, ठीक है. तो वो चॉइस के लिए पीपुल्स के सामने होते हैं. वही दिया है, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters. तो वो भी फ्री है, यानी कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए फ्री है. तो ये चॉइस दो हो गई. एक जो वोटर है उसके लिए चॉइस दी जा रही है कि सामने कैंडिडेट खड़े हैं, आपको इनमें से एक को एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुन लेना है. दूसरा पीपुल को दूसरी चॉइस ये है कि वो चॉइस बन सकते हैं वोटर के सामने. वो खुद चुनाव लड़ सकते हैं कि भाई नहीं ठीक है, हम किसी पार्टी से नहीं, हम स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हो रहे हैं, हम भी एक चॉइस बन गए. सो थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल. ये जो चॉइस है एक बार में खत्म नहीं हो जानी चाहिए. इस इंटरवल के बाद फिर चॉइस पीपुल के सामने देनी चाहिए. वो इंटरवल क्या है? 5 years. द स्लैब ऑफ 5 years. हर 5 साल के बाद चुनाव इसीलिए होता है कि 5 साल में आपने तो एक चॉइस को जो है चूज कर लिया कि नहीं ये बड़ा अच्छा बंदा है, यही हमारा जो है बड़ा वेल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा. बट पता चला कि 5 साल में तो सबसे वर्स्ट था, सबसे खराब रिप्रेजेंटेटिव हमारा गया, कुछ नहीं किया. तो फिर एक इंटरवल 5 साल का है, फिर आपके सामने चॉइस दी जाएगी. सो रेगुलर इंटरवल इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स लिखा है, लेकिन इंडिया में एवरी 5 years होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे तो गवर्नमेंट कभी भी गिर जाए, पार्लियामेंट डिजॉल्व कर दी जाए तो तुरंत इलेक्शन हो जाता है. बट जो कॉमनली अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन FEW ये गलत है. 5 years ही आप लिखेंगे, मेंशन कर लीजिए. फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपुल शुड गेट इलेक्टेड. द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपुल. पीपुल जिस कैंडिडेट को प्रिफर करेगा, जिसको प्रेफरेंस देगा, महत्व देगा, वही चुनाव जीतेगा. मेजॉरिटी ऑफ पीपुल जिसको वोट देती है वही कैंडिडेट
रिप्रेजेंटेटिव बनता है, इलेक्शन विन करता है, इसका मतलब उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिला, उसको महत्व ज्यादा मिला। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। इतना चॉइस, वोटिंग राइट्स, इक्वल वोट वैल्यू सब कुछ देने के बाद भी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। चुनाव एकदम स्वतंत्र पूर्वक हो। तो फ्री एंड फेयर क्या है? कैंडिडेट शुड बी आल्सो फ्री एंड वोटर शुड बी आल्सो फ्री। जो कैंडिडेट बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, वो स्वतंत्र है। वो जाकर के पेपर फिलअप करेगा कि हम कैंडिडेट बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कोई रोक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वोटर जिसको भी चूज करना चाहता है, जिसको भी वोट देना चाहता है, उसके ऊपर भी कोई प्रेशर ना हो। उसको वोटिंग पॉइंट पे, जहां पर वोटिंग होती है, वहां तक जाने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो दोनों लोग स्वतंत्र होंगे और फेयर, साफ सुथरे तरीके से, उसमें कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप गए तो पता चला आपका वोट पड़ गया है, या आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, या वहां पे जाने के बाद जो है आपको लौटा दिया जाए कि नहीं नहीं ये तो इनका जो वोटिंग कार्ड है वो बेकार है, नकली, कुछ भी। तो फ्री एंड फेयर मैनर्स वेयर पीपुल कैन चूज एज दे रियली विश। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। इतना सब कुछ जब कंडीशन अप्लाई होगी, तब जाकर के हम किसी भी इलेक्शन को बोलेंगे दैट इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक चुनाव। आफ्टर दैट, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? जब भी चुनाव होता है तो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, और पॉलिटिकल कंपटीशन जब होता है तो लीडर्स आर मेकिंग मेनी आर्गुमेंट्स upon another parties or opposition leaders, or they cross the limit of civilization, limit of the honesty. लीडर्स जो है वो कुछ भी बोलते हैं, दूसरे पार्टी वाले को एब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, मीडिया में भी आता है। तो इसीलिए लिखा है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या राजनीतिक प्रतियोगिता अच्छी है? पॉलिटिकल कंपटीशन करना अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टी क्यों है? हटा दो, इंडिविजुअल कैंडिडेट खड़े हो जाए, पार्टी की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी पार्टियां हैं पूरा का पूरा इनको डिसॉल्व कर देना चाहिए, और कोई भी इलेक्शन लड़े, कोई भी जो है जीत जाए। सो दिस इज आल्सो, तो ही होगा। क्या ये अच्छा है तो हम बोलेंगे हाँ ये अच्छा है, हम ये भी बोलेंगे कि नो नहीं ये अच्छा नहीं है। तो जो अच्छा नहीं होता है उसके लिए अनदर वर्ड होता है बैड, बुरा। नहीं अच्छा नहीं है तो बड़ा खराब है, बहुत बुरा है। इट मीन्स दिस टॉपिक रिक्वायर्ड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इलेक्शन और पॉलिटिकल कंपटीशन। Elections are all about political competition, the competition among the political parties. जब कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है तभी हम उसको बोलते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन। इट मीन्स इनडायरेक्टली दिस टॉपिक टेल अबाउट द कंपटीशन एमंग पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड और बैड। अगर इंडिविजुअल पार्टी नहीं रहती तो पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होता, तब तो इलेक्शन ही होता। सो if there is no competition, election will become pointless. कंपटीशन होगा ही नहीं तो इलेक्शन का मतलब ही नहीं, पॉइंटलेस है। जब कॉन्टेस्ट लोग करेंगे, कई लोग खड़े होंगे, पार्टियां खड़ी होंगी, कैंपेन करेंगी, बोलेंगे हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े भोले भंडारी हैं, हम हरिश्चंद्र के खानदान वाले हम ही हैं, कहाँ भूल के जा रहे हो भैया दूसरे को वोट देने। तो ये सब जो करते हैं, अगर ये ना हो तो इलेक्शन ही पॉइंटलेस हो जाएगा। An electoral competition has many demerits and merits. तो पहली बात की पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन पॉइंटलेस हो जाएगा, एक पॉइंट यहां मिल गया। इसके बाद हम डीमेरिट्स एंड मेरिट्स के लिए चलते हैं। सो पहले हम डीमेरिट में आएंगे। क्यों? दिस इज द ह्यूमन नेचर, किसी की बुराई हमें बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, तो मैंने पहले डीमेरिट्स लिखा, क्योंकि बड़ा बुराई बड़ा तेज दिखता है ना। व्हाइट शर्ट पहनो, अगर उसमें छोटा सा भी ब्लैक अगर पॉइंट भी लगा है वो दिख जाएगा जरूर। तो काले शर्ट में अगर थोड़ा सा जो है पॉइंट है तो वो नहीं दिखता है। तो उसी तरीके से
demerits. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. अब यहां पर क्या होता है, बंटवारा हो जाता है, डिसयूनिटी हो जाती है, एकता नहीं रह जाती समाज में, अपने लोकेलिटी में, और लोग बट जाते हैं। कोई साइकिल वाला हो जाता है, कोई कमल वाला हो जाता है, कोई पंजा वाला हो जाता है, कोई हाथी वाला हो जाता है। और दिक्कत तो तब होती है कि जो एक ही घरे में भाई भाई दूसरे दूसरे पार्टी के हो जाते हैं। होता है आपकी लोकेलिटी में, होता होगा। बेटा बोलेगा कि नहीं अखिलेश यादव को वोट देंगे, बाप कहेंगे कि मारेंगे, टांग तोड़ देंगे, मोदी को जिताना है। तो दिस इज द disunity and factionalism in every locality. Next point, different political parties and leaders often label allegations against one another. And now these days, you have been seeing on the media channel about some issues related to Maharashtra, especially in the Bombay. वो क्या है? That is also political stunt. In Bihar, चुनाव will be held after some month. महाराष्ट्र में तो अपोजिशन जो भी है वो मर्डर है या सुसाइड है, इसको लेकर के इतनी बातें बढ़ रही हैं। तो दिस इज नॉट ओनली सोशल इशू, दैट इज आल्सो पॉलिटिकल इशू, एंड लीडर्स एंड पार्टीज ओके मेक टू पोलिटाइज दिस इशू। इसका राजनीतिकरण हो रहा है थ्रू मीडिया। So parties and candidates often use dirty tricks to win election. What are the dirty tricks? Provide chicken policy, provide liquor policy. खूब दारू बांटो, चिकन बांटो, खूब बढ़ता है, लोग खूब खाते हैं, ठीक है। इसके बाद मनी पॉलिसी, दे प्रोवाइडिंग मनी, रात रात में 2-2 हजार, 4-4 हजार, 1-1 हजार के बंडल सबके घरों में पहुंचा दिया जाता है कि हमें वोट देना। तो डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। दूसरा डर्टी ट्रिक्स का है टेरराइज द वोटर्स, ये वोट हमको देना है, दूसरे को दिया तो मर्डर कर दूंगा मैं। या पहले पता चल गया कि इस गांव के लोग, इस मोहल्ले के लोग हमको वोट नहीं देंगे, तो इनको रोक दो घरों में, वोट देने ही मत दो। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ sensible long-term policies. The pressure to win electoral fights. ये उनके लिए है जो पार्टीज गवर्नमेंट में है। तो the parties who run the governments, that party also terrorize to fight the election in next interval. वो सोचते हैं कि 5 साल के बाद हम पता नहीं सत्ता में रहे कि न रहे, और ये काम तो बड़ा अच्छा है, रोड बनवाना, रेलवे लाइन बनवाना, पुल बनवाना, स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, ये तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। बस यहाँ की पब्लिक तो कहती है नहीं हमें पेंशन दो, हमें खाना दो। दूसरे पार्टी वाले एकदम रोड पे आ गए हैं कि नहीं नहीं साहब आप गलत कर रहे हो। तो लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज होती है, 10 ईयर पॉलिसीज, 20 ईयर पॉलिसी, क्योंकि कोई भी रेलवे ट्रैक, कोई भी ब्रिज, कोई भी हाईवे 5 साल में कंप्लीट नहीं होता। कोई भी पोर्ट, कोई भी क्या बोलते हैं रिसर्च सेंटर, इसके लिए काफी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में मनी स्पेंड करने के बजाय वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी ले आती है। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी में ये फूड प्रोवाइड कर दो, 100 रुपया सबको बांट दो, फीस को फ्री कर दो, अनाज बांट दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती। इससे किसी भी पीपुल का, किसी भी पब्लिक का फ्यूचर नहीं गोल्डन होता है, ना फ्यूचर सिक्योर होता है। तो यही दिया है पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेट सम गुड पीपुल हु मे विश टू सर्व द कंट्री। कुछ अच्छे लोग जो सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं या बहुत जानकार है, स्कॉलर्ड पर्सन है, ऐसे लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं, डू नॉट इंटर दिस एरिया। वो इस पॉलिटिकल कंपटीशन की एरिया में नहीं आना चाहते। और डू यू नो अबाउट लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबुल कलाम आजाद? एक बार उन्होंने स्पष्ट रात में ही बोल दिया कि हम रिजाइन करेंगे। राजनीति से मैं तंग आ गया हूं, एक दूसरे के आरोप से मैं तंग आ गया हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं और ये क्या है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं राष्ट्रपति बनके। ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी, लेकिन हायर लेवल पे मिलता है
कि he was feeling shameful to be a president of India because of political competition. बाद में उनको समझाया बुझाया गया कि नहीं सर, देश में बड़ा बवाल हो जाएगा और अगर आपने रिजाइन कर दिया तो समझिए कि गवर्नमेंट नहीं रहेगी, विपक्ष तो सड़क पे आएगा ही, देश की जनता सड़क पे आ जाएगी। तो हाथ पर उस समय के प्रधानमंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जिनकी वॉइस सोनिया की वॉइस बोली जाती थी या जो भी। तो ऐसे ऐसे केस हमारे होते हैं। तो अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ द पॉलिटिकल। बड़ा बुरा है भाई, ये तो बहुत बुरा ही है। ऐसे इलेक्शन होगा तो कैसे देश चलेगा? ये तो सारे चोर जाके बैठ जाएंगे। सो हाउ डू वी डील विथ दिस रियल लाइफ सिचुएशन? जो रियल लाइफ सिचुएशन पॉलिटिकल कंपटीशन की है, ठीक है, आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो कैसे हम डील करेंगे? तब तो इलेक्शन बड़ा गंदा चीज है, नहीं होना चाहिए। बट दिस कंपटीशन हैज सम मेरिट्स। व्हाट आर द मेरिट्स? पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपुल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो अच्छा काम करता है उसको जनता फिर से चुनाव जिता देती है, तो रिवार्ड मिल जाता है, और जो काम नहीं करता उसको जनता हरा देती है। तो ये मेरिट्स है कि पब्लिक के पास राइट्स होता है कि वो पनिश करे या रिवार्ड करे। नेक्स्ट, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। तो प्रोवाइड इंसेंटिव क्या होता है? ज्यादा बहुमत से जीतेगा, बार बार जीतेगा तो मंत्री बन जाएगा कि भाई ये बराबर जीत के आता है, बड़ा अच्छा लीडर, इसको मंत्री बना दो। दे नो दैट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपुल वांट। लीडर जानते हैं, पार्टी जानती हैं कि वो मुद्दे वो उठाएंगे जो जनता को पसंद है। देयर पॉपुलरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन नेक्स्ट इलेक्शन। तो जनता के जो मुद्दे हैं, जनता जब सड़क पे आती है, कोई डिमांड होता है, तो कुछ लीडर आ जाते हैं उनके साथ और उस मुद्दे को उठाते हैं कि मेरी पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो जनता के जो डिजायर्स है, जो जनता की परेशानियां है, वो कोई न कोई लीडर आकर के उसको ले जाता है, सेंटर लेवल पे ले जाता है, प्रोटेस्ट करता है, तो जनता की प्रॉब्लम दूर होती है। इट फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व पीपल। तो ये जो जनता का मुद्दा उठाना है या रिवार्ड या अगले चुनाव में वो हार जाएंगे, इसका जो डर है वो उन्हें बाध्य करता है। फोर्स डज नॉट मीन बल, यहाँ फोर्स का मतलब बाध्य। इट फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज, ये राजनीतिक दलों को बाध्य करता है, एंड लीडर्स और उनके नेताओं को टू सर्व पीपल, ये जनता की सेवा करें। दीज आर द मेरिट्स।